So, first of all, the plants and animals are made up of cells. We all know that plants and animals are made up of cells. सबसे बेसिक यूनिट जो होती है हमारी किसी भी प्लांट और एनिमल की, वो होती है सेल. तो हमने देखा कि बहुत सारे सेल अगर एग्रीगेट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू. तो टिश्यू की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है जिसके अंदर 3 बेसिक की पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहला कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद अ कॉमन ऑरिजिन परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. ये 4 चीज़ें आपको टिश्यू की डेफिनेशन लिखते वक्त याद रखनी होगी कि ये क्या है, एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है. ओके, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनका ऑरिजिन कॉमन है. अगर मीजोडर्मल है तो मीजोडर्मल, एंडोडर्मल है तो एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल है तो एक्टोडर्मल. आई विल टेल यू अबाउट दीज 3 टर्म्स दैट आई हैव यूज्ड लेटर. सबसे पहले ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जिनका कॉमन ऑरिजिन है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक साथ मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं. उसके बाद से बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Similar tissue assemble in specific pattern and proportion to form organ level of organization. Now, different organ interact with each other to form organ system. Okay, so this is organ system level of organization. So, when the organs interact with each other physically or chemically, then they form an organ system. Okay, so first let's take an example. There is a cell from our stomach or gut. When lots of cells come together, they form some tissue of our stomach or gut. Then many tissues that performing a specific function form organs like stomach, small intestine, mouth, etc. And all these organs of alimentary canal are working together to perform a specific function, that is digestion. So they all are organ system. Now, cellular level of organization is found in phylum Porifera. These animals you will understand in the chapter Animal Kingdom. So, cellular level of organization is found in phylum Porifera. Tissue level of organization is found in Coelenterata and Ctenophora. Organ level of organization is Platyhelminthes, while organ system is from Aschelminthes to Chordata. Now, let's see the term tissues was given by Bichette, that is Bichette. Now, histology term was given by Mayer. And what is histology? Histology is nothing but study of tissues. Plant anatomy tissue was coined by N. Grew. These are the 3 important scientists that you must know about. And one more scientist is there, that is the scientific discovery of epithelial tissue, that was given by Rush. We will study about it later. Now we will understand about animal tissue. Animal tissue are basically of 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Now we will see the whole table accordingly. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू को 2 तरीके में बांटा हुआ है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू. ये किस बेसिस पे बांटा गया है, नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस में. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, वाइल कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर होते हैं बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स. अब देखो, सिंपल एपिथेलियम को फर्दर 4 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप. यू हैव टू लर्न द बेसिस ऑन विच दे आर क्लासिफाइड, because that can come in examination. So on the basis of shape they are divided into 4 types: squamous, cuboidal, columnar and pseudostratified. And on the basis of modification of cells they are divided into 3 types: ciliated, brush border, glandular, etc. अब देखो, कंपाउंड एपिथेलियम का क्या मतलब है, जिसके पास बहुत सारी लेयर्स है. तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि ये किस चीज़ का काम करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा. यस, करेक्ट, ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगा. नाउ these are classified as 2 types, that is stratified and transitional, that is urothelial. Now, connective tissue are of 3 types, that is loose connective tissue, dense connective tissue and
Specialized connective tissue. Loose connective tissue is divided into further two types, that is areolar and adipose tissue. Now, dense connective tissue is divided into two types, regular and irregular. And specialized connective tissue are divided into two types, skeletal and fluid. Later, the skeletal is divided into bone and cartilage and fluid is divided into blood and lymph. ठीक है. लूज कनेक्टिव टिश्यू वर्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं कि लूजली पैक्ड होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से डेंसली पैक्ड होंगे, और स्पेशलाइज से हम समझ पा रहे हैं कि वो कोई स्पेशल काम कर रहे होंगे, है ना. ओके, तो ये कौन से बेसिस पे डिवाइड होते हैं? ये दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स इन द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर इसके सेल्स और फाइबर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस बेसिस पे ये डिवाइड होते हैं. डिवीजन होता है इनका इन लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. अब यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे होता है नर्वस टिश्यू, उसके ऊपर मस्कुलर टिश्यू, उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे सारे टिश्यूज का जो कि प्रेजेंट होते हैं. तो हम देख सकते हैं कि जैसे नर्वस टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू है वो सारे के सारे टिश्यूज के अंदर इनरवेट कर रही है. क्या कर रही है? द वर्ड इज इनरवेट कर रही है. सो नर्वस टिश्यू इज गेटिंग इन एवरी लेयर ऑफ टिश्यू. वो एपिथेलियल में भी जा रही है, कनेक्टिव टिश्यू में जा रही है, मस्कुलर में भी जा रही है, नर्वस में तो है ही. नाउ दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर 1 और आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.